Dear students, we are studying paper 12th standards paper 2's first chapter differentiation. Till now we have taken derivatives of composite functions, geometrical meaning of derivative, derivative of inverse function, derivatives of inverse trigonometric functions and examples based on them. Today we'll take logarithmic differentiation. When we want to find the derivative of logarithmic derivatives of functions which is expressed in the form of product of number of functions or quotient of functions or in the form of f of x is to g of x, then it is convenient to find the derivative of logarithm of the function. That's why this method is called as logarithmic differentiation. In this case, before taking differentiation, you have to take log of the function and then you have to differentiate. Therefore, this method is called as logarithmic differentiation. Here, we generally express function as y is equal to f of x. If you take log of both sides, left hand side will be log of y and right hand side will be log of some functions. Okay, so log of that y, we'll see how to differentiate it now. Now to differentiate log of y, we have to use chain rule. As this derivative of ddx of log of y is equal to ddy of log of y into dy by dx, and derivative of log y is 1 upon y, means dy of log y is 1 upon y into dy by dx. So derivative of log of y with respect to x is 1 upon y dy by dx. Okay, so this we have to use in further solving, so remember this. Now we required basic concepts, basic rules of differentiation, logarithm, that will see in the first now. So before that, where logarithmic differentiation is applicable, see this type of problems and this types of problems, logarithmic differentiation is applicable. Now we'll see laws of logarithm. First law is law of product. Log of xy to the base a is log of x to the base a plus log of y to the base a. Second law is law of quotient. Log of x by y to the base a is log of x minus log of y. Third law is law of exponent. Log of x raised to y to the base a is y into log of x to the base a. So whatever is in the power, ये power में जो भी आपका होगा उसको आपको as a multiplier लाना है log of x के पहले. That is law of exponent. Next law is change of base law. Log of x to the base y is equal to log of x to the base a upon log of y to the base a. इसमें आपको कोई भी बेस लो आप, लेकिन वो सेम बेस लेना है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको बेस ये जो है ए की जगह आप कोई भी बेस ले सकते हो, बट वो सेम लेना है. ओके, नेक्स्ट विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम. Log of 1 to the base a is 0, where a is greater than 0 and a must not be equal to 1. Log of a to the base a is equal to 1, where a greater than 1, a must be not equal to 1. And third one is a raised to log of x to the base a is equal to x, where this exponent a and the base a must be same. If they both are same, then its value is equal to x, provided that this a must be greater than 0 and a must not be equal to 1. Okay, using these laws we'll solve few unsolved problems from the exercise 1.3. First one, differentiate the following with respect to x. Their first problem, y is equal to x plus 1 square upon x plus 2 cube into x plus 3 raised to 4. In this case, first of all, we have to take log of both the sides.
So log of y is equal to log of this term you have to take in the bracket. Okay, then next step log of y is equal to, now आपको यहाँ पे ये log of जो ब्रैकेट में टर्म है इसमें आपको log के लॉज लगा के इसको सेपरेट करना है. सो न्यूमरेटर के टर्म के साथ पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर के टर्म्स के साथ निगेटिव आएगा, निगेटिव ऑफ लॉग आएगा. सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर माइनस, डिनोमिनेटर की टर्म है इसलिए माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 क्यूब माइनस लॉग ऑफ x प्लस 3 रेज टू 4. अब यहाँ पे आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है. जो भी पावर में जो भी आपका नंबर है दैट विल कम लॉग के पहले मल्टीप्लायर में आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में. सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 लॉग ऑफ x प्लस 3. अब इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सो वी डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब आपको पता है लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. दैट विल अप्लाई इन ऑल द टर्म्स. सो और लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव जस्ट नाउ वी हैव सीन कि लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको चेन रूल यूज़ करना है. सो लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 3 का डेरिवेटिव माइनस 4/x प्लस 3. ओके, नेक्स्ट dy/dx इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 1/y उसको हमने राइट हैंड साइड में ले गए और फिर y की जो भी हमारी वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देंगे. सो फाइनल आंसर इज dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 क्यूब इंटू x प्लस 3 रेज टू 4 इंटू ब्रैकेट 2 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स x प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स x प्लस 3. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रॉब्लम. तो इसमें हमने क्या किया, पहले लॉग लिया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया लॉज लगा के और फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया. ओके, वन मोर प्रॉब्लम विल टेक ऑफ द सेम टाइप. इसमें देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5. ये प्रॉब्लम में आपको न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है. सो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 tan क्यूब ऑफ 4x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 3x. पहले क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे. तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दी होल टर्म. अब लॉज ऑफ लॉगरिथम लगा के हम इनको सेपरेट करेंगे लॉग के टर्म्स को. सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ न्यूमरेटर के टर्म के साथ पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर के टर्म के साथ निगेटिव आएगा. सो लॉग ऑफ x रेज टू 5 प्लस लॉग ऑफ tan क्यूब ऑफ 4x माइनस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 3x. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के जो लॉग के साथ जो टर्म है उसके रेज टू जो पावर्स है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लॉग x के पहले लिख लेंगे. सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 5 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ tan ऑफ 4x माइनस 2 टाइम्स log of 2 times this 2 times minus log of sin of 3x. Now we differentiate with respect to x. अब डिफ्रेंशिएशन के वक्त वही यूज़ करना है, log of x का डेरिवेटिव 1/x है लेकिन वो लिखना है, और log of x की log of x की जगह अगर कोई आपका फंक्शन है तो कॉम्पोजिट फंक्शन वाला जो भी हमारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वो यूज़ करना है, यानी जो भी आपका फंक्शन होगा उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, विल सी नाउ. सो लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 5 टाइम्स लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ tan ऑफ 4x. तो लॉग ऑफ है तो पहले उसका क्या आएगा, 3/tan ऑफ 4x 1/tan ऑफ 4x इनटू, यानी यहाँ पे क्या हो गया, log ऑफ tan ऑफ 4x का डेरिवेटिव 1/tan ऑफ 4x आ गया. ठीक है, अब tan ऑफ 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 6 स्क्वायर ऑफ 4x, और ये 4x है इसलिए उसका डेरिवेटिव 4. ओके, माइनस नेक्स्ट टर्म में क्या है, log ऑफ साइन ऑफ 3x, log ऑफ साइन ऑफ 3x. सो log ऑफ साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/sin ऑफ 3x इनटू साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 3x एंड 3x का डेरिवेटिव 3. ओके, सो
वी सिंप्लीफाई द टर्म्स, हम लोग इसको रिकलेक्ट करके टर्म्स लिख लेंगे. नेक्स्ट 1/y divided by dx is equal to 5/x plus 4 3s are 12 sin square of 4x upon tan of 4x minus 3 2s are 6 cos of 3x upon sin of 3x. ओके, नेक्स्ट dy बाई डी एक्स, ये 1/y लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में ले गए हमने. सो y इंटू ब्रैकेट 5/x प्लस 12 टाइम्स. अब ये सेक्स स्क्वायर इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर ऑफ 4x इंटू टैन ऑफ 4x को लिख लेते हैं साइन ऑफ 4x अपॉन कॉस ऑफ 4x. अब ये जो नीचे का जो कॉस ऑफ 4x है दैट विल गेट्स कैंसल विद दिस कॉस, उसमें कि एक वो कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 4x के एक टर्म के साथ. तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, कॉस ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 4x. अब इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो न्यूमरेटर में आ गया 24 अपॉन 2 कॉस ऑफ 4x साइन ऑफ 4x. इसके लिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा. तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा. सो 24 साइन ऑफ 8 थीटा अगर हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हो जाएगा कोसेक ऑफ 8x. ठीक है, साइन ऑफ 8x जो डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये कोसेक ऑफ 8x हो जाएगा. माइनस 6 टाइम्स कॉस ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 3x इज कॉट ऑफ 3x. ओके, सो फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर tan क्यूब ऑफ 4x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 3x इंटू 5/x प्लस 24 cosec of 8x minus 6 times cot of 3x. So it completes this sum. Now we'll see the next exercise. वही एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइप के सम्स देखते हैं. यहाँ पे डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसमें आपको देखिए, आपको प्लस के फॉर्म में दिया है. y जो फंक्शंस हैं वो प्लस एडिशन के फॉर्म में दिए हैं. आप लॉग कब यूज़ कर सकते हैं, जब वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टर्म्स में है. अब इस टाइप के सम्स में आपको u एंड v लेके आपको टर्म्स को आपको बाइफर्केट करना है और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है. जब एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाली जो भी टर्म रहेंगी उसको हम लोग v बोल लेते हैं. और ठीक है, और बाकी के सारे टर्म्स हम कलेक्ट करके लिख लेते हैं. Therefore u is, let us suppose u as e x raised to e plus e raised to x plus e raised to e and v as x raised to x. So y is u plus v, where u and v are differentiable functions of x. So dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Let us denote it by equation number 1. तो हमको क्या करना है, u and v का डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो लेट अस सपोज पहले u स्टार्ट करते हैं हम. u इज x रेस टू e प्लस e रेस टू x प्लस e रेस टू e. नाउ वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसमें x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यूजिंग दैट x रेस टू e का डेरिवेटिव हो जाएगा e x रेस टू e माइनस 1 प्लस e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x प्लस e रेस टू e का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म. So no need of writing 0. So हमारा du by dx is e x raised to e minus 1 plus e raised to x. Let us denote it by equation number 2. Now consider v. v is x raised to x हमने लिया हुआ है. So हम लोगों को taking log लेना है दोनों साइड का. Taking log of both the sides. Log of v is equal to log of x raised to x. So exponent की प्रॉपर्टी यूज़ करके log of x raised to x को हम लोग x log of x लिख लिए डायरेक्टली यहाँ पे. So log of v is x log of x. Now we differentiate with respect to x. So derivative of log of v by using chain rule क्या आएगा, 1/v dv by dx प्लस. अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करना है x इंटू लॉग ऑफ x के लिए. तो पहले x को फिक्स रख लिया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज़ 1/x प्लस लॉग ऑफ x को फिक्स रख लिया, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1. नाउ therefore dv by dx नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं dv by dx इज इक्वल टू 1/v जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में ले गए v इंटू ये जो x है ऊपर के टर्म का कैंसिल हो गया. सो हियर इट इज़ 1 प्लस log of x. So v into 1 plus log of x. Now we substitute the value of v as x raised to x.
So dv by dx is x raised to x into bracket 1 plus log of x. That is denoted by equation number 3. Now substituting second and third equations in 1, we get dy by dx is equal to ex raised to e minus 1 plus e raised to x plus x raised to x into bracket 1 plus log x. So this is our final answer. We have उसको ब्रैकेट में लिख लिया अच्छे से. Okay, so this completes our logarithmic differentiation topic. I've taken few unsolved problems from the textbooks and I've solved them. I've solved few more unsolved problems from exercise 1.3 for you. तो उसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी और आपको एक्सरसाइज भी 1.3 का फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल्स का जो लिस्ट है वो भी प्रोवाइड करूँगी, सो दैट जिनके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है दे कैन सॉल्व एट होम. Okay, so in the next class we will continue our next topic of differentiation. Thank you.